इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स। सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कृषाणु, an English professional communication and personality development trainer since 10 years. मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे प्रैक्टिकल विज्ञान दे रहा हूं। I have trained professionals associated with corporates, finance, hospitality, aviation and educational sectors. I have trained professionals like chartered accountants, managers, bankers, advocates, teachers, trainers, air hostess, management students, college students, and even housewives. And in these 10 years, I have observed that these people are well qualified. They have good knowledge and experience. लेकिन एक छोटा सा स्किल जो इन्हें पीछे कर देता है, that is English communication skills. Yes friends, you have heard it right. एक छोटा सा स्किल है and we are going to make it big together. My vision is to educate all English learners with phenomenal English speaking abilities so that their confidence goes through the ceiling. In my channel, I would upload videos on how to understand, learn and communicate the language with a bird's eye view, मतलब बहुत ही clarity के साथ. I would train you on basic, advanced and business English that will make waves in your lives and you will always be ahead of the pack. आप दुनिया से हमेशा एक कदम आगे ही रहेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. I will be back soon with my next video. तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, कमेंट डालिए. आई वुड बी सून बैक. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड बी हैप्पी. इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स. सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है. आई एम कृषाणु, एन इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर. टुडे इन दिस वीडियो आई वुड बी शेयरिंग यू द ग्रामर रूल्स. ग्रामर. In my career, I have come across many of the English learners जो ग्रामर से बहुत घबराते हैं and they feel अगर मेरी ग्रामर अच्छी हो तो मेरा कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाएगा. So in this video, I would be explaining you the grammar rules जो आपको फॉलो करने हैं and that will make your grammar fantastic. Number 1, tenses. You have heard about tenses, friends. What do you mean by tenses? अब आप बोलोगे काल या past, present, future. मैंने आपको पूछा what is the meaning of a tense? A tense is a method of exchanging information by questioning and answering. सवाल जवाब करके हम information exchange करते हैं. For example, what do you do? I am a banker. Where do you live? I live in New Jersey. एक ने सवाल किया और दूसरे ने जवाब दिया. I will be training you with all the tenses in my upcoming videos, जहाँ पे आपको सब tenses के बारे में जानकारी मिलेगी and you would be able to frame the sentences properly. आगे बढ़ते हैं. दूसरा टेक्निक है modal auxiliary. Modal auxiliary is a method of requesting, advising or suggesting or taking permission. आपने should, could, would, may, might सुना होगा. These are used to advise, suggest or to take permission or to give some kind of suggestion. For example, you should join an English speaking class. ये आपको किसी ने सुझाव दिया कि आपको English speaking class join करना चाहिए. I would be uploading videos on modal auxiliary very soon, जहाँ पे आपको questions कैसे बनते हैं, कैसे answers दिया जाता है, उसके बारे में आपको information मिलेगी. Moving on to the third important rule of grammar is prepositions. Friends, prepositions का मतलब होता है how do you join one word to the other one? आप कैसे एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हो. For example, I went to the market. अब टू ने went को market से जोड़ा, that is called preposition. वैसे हमारे पास in है, on है, by है, with है. I would be uploading videos on this very soon. इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं ग्रामर रूल्स के बारे में. आगे बढ़ते हैं. चौथा रूल, दैट इज कंजंक्शंस. कंजंक्शन का मतलब है दोस्तों टू जॉइन वन सेंटेंस टू द अदर वन.
एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला आई वेंट टू द मार्केट, आई ब्रॉट वेजिटेबल्स। यहां पे आपने दो सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। आप इसको कंजंक्शन की मदद से एक बना सकते हो, जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट वेजिटेबल्स। यह कंजंक्शंस का कंट्रीब्यूशन ग्रामर रूल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, दैट इज आर्टिकल। आपने सुना होगा ए एंड द, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये कहां पे लगते हैं? ये लगते हैं ऑब्जेक्ट के पहले। एक सेंटेंस जो बनता है दोस्तों, उसमें शुरू होता है सब्जेक्ट से, फॉलोड बाय वर्ब एंड देन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सीधे पहले लग जाता है आर्टिकल। अगर ऑब्जेक्ट अनस्पेसिफिक हुआ, जैसे गिव मी अ चेयर, मुझे इन सब चेयरों में से कोई भी एक चेयर दो, वहां पे अ लग जाता है। गिव मी द ब्लू चेयर, मुझे वो नीला चेयर ही चाहिए, द लग जाता है। अ मतलब अनस्पेसिफिक और द मतलब स्पेसिफिक। ये हमारे ग्रामर रूल। मैं इनके ऊपर आपको और डिटेल में वीडियो अपलोड करूंगा, जहां पे आप टेंसेस के बारे में, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में, कंजंक्शन के बारे में और आर्टिकल के बारे में सारे डिटेल्स ले सकते हो, एंड दैट विल मेक योर इंग्लिश लैंग्वेज गो थ्रू द सीलिंग। अभी तक के लिए इतना ही। I'll get back to you with my next video. तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, कमेंट डालिए। I would be back soon. अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी हैप्पी। इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स। सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कृषाणु, an English professional, communication and personality development trainer. Today in the video, I would be sharing you what do you mean by helping verb and what do you mean by main verb. Helping verb क्या होता है और main verb क्या होता है, आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। As you know, it's a thumb rule that when you frame a sentence in English, it starts with a subject plus verb plus object. एक सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट पे, उसके बाद verb लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। अब वर्ब में हमारे पास दो प्रकार के वर्ब है। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और आज का जो वीडियो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है उसके बारे में है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज द सेंटेंस फ्रेमिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। हेल्पिंग वर्ब पे चलते हैं पहले। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्पिंग वर्ब एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा, एक सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ये चार इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट मीन्स इट इज अ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस आपको इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों, जैसे आई लिव हियर, आपने इंफॉर्मेशन पास किया। तो अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलती है, ये चार, इसका मतलब है ये एक हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है। नंबर वन, क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स बहुत अच्छा लड़का है। इसमें जेम्स के बारे में एक अच्छापन का क्वालिटी नजर आ रहा है। जेम्स इज अ गुड बॉय और अ नाइस गाय। इसका मतलब है यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। पास्ट है तो वॉज वर, प्रेजेंट है तो एम इज आर, और अगर फ्यूचर है तो विल प्लस बी विल बी। सेकेंड इज द अपीयरेंस। अगर सब्जेक्ट के बारे में आपको अपीयरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स की कद 6 फुट 2 इंच है। जेम्स इज 6 फुट 2 इंचेस टॉल। यहां पे आपको जेम्स के अपीयरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। जेम्स अच्छा है, जेम्स गोरा है, जेम्स मोटा है, जेम्स काला है। इसमें सब आपको जेम्स के अपीयरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन। जेम्स घर पे है। जेम्स इज एट होम। जेम्स कल क्लास में था। जेम्स वॉज इन द क्लास। जेम्स कल ऑफिस में होगा। जेम्स विल बी इन द ऑफिस। ये आपको लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और चौथा है इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स दुखी है। जेम्स कल खुश था। जेम्स वॉज हैप्पी। जेम्स इज सैड। इसमें आपको जेम्स के इमोशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और ये सेंटेंसेस सब्जेक्ट के बारे में अगर ये इंफॉर्मेशन मिले, क्वालिटी के बारे में, नेक्स्ट इज अपीयरेंस,
द थर्ड वन इज द लोकेशन एंड द फोर्थ वन इज द इमोशन। इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है। इसमें आपको कोई वर्ब्स, मेन वर्ब्स नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब्स के ऊपर। मेन वर्ब्स हमारे पास है 3 प्रकार के, मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब सेकंड एंड मेन वर्ब थर्ड। आपने सुना होगा, जाने को बोलते हैं गो, वेंट, गॉन। आने को कम, केम, कम। ये तीनों फॉर्म है वर्ब्स के, जहां पे सब्जेक्ट कुछ एक्शन लेता है दोस्तों। ही टेक्स एन एक्शन, कुछ करता है, हरकत करता है, जहां पे उसके हाथ हिल सकते हैं, हिज हैंड्स आर मूविंग। यहां पे आपका मेन वर्ब आ गया मूविंग, आईएनजी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म लगा करके। देन ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया। कुछ क्रिया अगर करते हैं वहां पे हम मेन वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं आई हैव गॉन होम, ये हो गया परफेक्ट प्रेजेंट का मेन वर्ब का सेंटेंस, जहां पे आप घर जा चुके हो। ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको समझ में आ गया होगा। एक शॉर्ट ब्रीफ देता हूं मैं। हेल्पिंग वर्ब में आपको सब्जेक्ट के क्वालिटी, अपीयरेंस, लोकेशन और इमोशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और मेन वर्ब में आपको सब्जेक्ट ने क्या एक्शन लिया, सब्जेक्ट ने क्या क्रिया किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। यही डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। अभी तक के लिए इतना ही, मैं फिर लौटूंगा। आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, कमेंट डालिए, कुछ सवाल है तो पूछिए मुझसे, मैं हाजिर हूं जवाब देने के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर। इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स। सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कृषाणु, an English professional, communication and personality development trainer. Today in this video, I would be sharing you the first grammar rule, and the most important is the tense. काल। Tenses होते क्या है दोस्तों? In my previous video, I have explained you that tense is a method of exchanging information by questioning and answering in our day-to-day conversations. हम tense के मदद से दिन भर सवाल जवाब करते हैं और हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं। आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू द 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन डिटेल। लेट अस फर्स्ट मूव ऑन टू द पास्ट टेंस। जैसे मैंने आपको बोला था, एक सेंटेंस जो बनता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब के हमारे पास 2 मोर वेरिएशन है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। पास्ट टेंस में was and were यूज करते हैं as an helping verb. In present tense we use am is are, and in future tense we use will plus be, that is will be. In this video I would be sharing you the information and details of all the 3 tenses, starting from the past tense first. In past tense, as you can see, we have a helping verb sentence and a main verb sentence. In the helping verb sentence we have the subject plus helping verb plus object. एक टेंस में दोस्तों हम सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक होता है पॉजिटिव जवाब, एक होता है नेगेटिव जवाब, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सो वी कैन फ्रेम अ पॉजिटिव सेंटेंस, अ नेगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड इन यस और नो। डायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा यस और नो, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तू घर पे है, आप बोलेंगे हाँ या तो ना। एंड देन कमिंग टू इनडायरेक्ट क्वेश्चन, उसका जवाब हमें सेंटेंस में या ब्रीफ में देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तू घर पे क्यों है, देन यू हैव टू आंसर इट बाय सेइंग दैट कि मैं घर पे हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, या टीवी देख रहा हूँ मैं। So in this video, the first tense, as I told you, is a past tense. So we have a helping verb and a main verb sentence. The formula of a helping verb is subject plus helping verb plus object. इसी तरह we have the negative sentence, subject plus helping verb not plus object. For example, मैं घर पे था, I was at home. मैं घर पे नहीं था, I wasn't at home. और आपको याद रखना है, in a helping verb sentence you have to get the information on 4 parameters. आपको 4 चीज को देख करके information को देखना है. Number 1 is the quality, number 2 is the appearance, then we have the location, and then we have the emotion.
इसके हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बन गए। देन वी हैव द डायरेक्ट क्वेश्चन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मींस पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, इनडायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मैं आपको अगले वीडियो से टेंस आपको अपलोड करना शुरू कर दूंगा, जहां पर आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब मतलब तीनों क्रिया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यू हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक ऑफ द वर्ब्स। मैंने अपने करियर में देखा है दैट द इंग्लिश लर्नर्स डोंट हैव मच स्टॉक ऑफ वर्ब्स। एक कम, केम, कम है, गो, वेंट, गॉन है, इतने ही पता है। सो यू कैन इंक्रीज एंड एनहांस द स्टॉक ऑफ वर्ब्स। अब जो मेन वर्ब के सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, यू कैन सी देयर, दीज आर द वेज हाउ अ मेन वर्ब कैन बी यूज्ड। नंबर 1 है सिंपल पास्ट टेंस, जहां पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द मार्केट। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डिड आई गो टू द मार्केट। नेगेटिव होगा, डिडंट आई गो टू द मार्केट। और इनडायरेक्ट में होगा, व्हाई डिड आई गो टू द मार्केट, व्हाई डिड आई गो टू द मार्केट। इसके ऊपर पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोज में, जहां पे आपको टेंस के बारे में, पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। पास्ट टेंस में हम मेन वर्ब का इस्तेमाल इतने तरीकों से करते हैं। नंबर 1 इज सिंपल पास्ट, जहां पे आपके सेंटेंस बनेंगे, मैं घर गया, मैंने खाना खाया, मैं सो गया। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं और क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं आपको आगे समझाता रहूंगा। अभी मैं आपको एक आउटलुक दे रहा हूं कि हमें करना क्या क्या है हमारे इस चैनल के अंदर और आपको कैसे फॉलो करना है मुझे। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट पास्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैड गॉन होम, इसके नेगेटिव बनेंगे और क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं घर जा चुका था, आप बोलते हो राइट, आप बोलते हो मैं घर गया, एक तरीका हो गया। आई वेंट होम, मैं घर जा चुका था, और एक तरीका हो गया आई हैड गॉन होम। दोनों अलग अलग टेंसेस है, लेकिन टेंस पास्ट है पूरा, उसके अंदर हम मेन वर्ब सीख रहे हैं। नंबर 3 इज कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, जैसे मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं आपको डिटेल टेंस अपने आने वाले वीडियो में बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ज़्यादातर हम टाइम से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कंपनी में 4 साल से काम कर रहा था। आपको सुनने में लगेगा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है, लेकिन इसमें एक ड्यूरेशन है 4 साल का, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बना सकता आई वॉज वर्किंग फॉर 4 years और फ्रॉम 4 years। आपको बनाना पड़ेगा आई हैड बीन वर्किंग। इसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेल्स दूंगा। इसके अलावा जो 3 नए टेंसेस है जो मेरे चैनल में आपको मिलेगा यूनिक, वो है सपोज टू, हैड टू, एबल टू। हम ज्यादातर जब बात करते हैं बाहर, हम सपोज टू का, हैड टू का और एबल टू का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमारे चैनल में आपको ये सब टेंसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा, सपोज टू होता है यूज, मैं कुछ चीज करने वाला था। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे कल मिलने वाला था, आई वॉज सपोज टू मीट यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर डिटेल्स मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में देता रहूंगा। आप हैड टू मतलब कोई कंपल्सरी चीज करनी ही पड़ी आपको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज सुबह उठना पड़ा, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे हैड टू। उसका नेगेटिव फॉर्म आएगा, उसके सवाल जवाब भी आएंगे जो मैं आपको आगे देता रहूंगा। फिर आता है एबल टू, कोई चीज जो आप कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज सुबह 5 बजे उठ पाया, आई वॉज एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो इस तरह से हमारे मेन वर्ब के सेंटेंसेस बनते हैं, जहां पे मिसाल के तौर पर पास्ट टेंस में आई वेंट, आई हैड गॉन, आई वॉज गोइंग, आई हैड टू गो, आई हैड बीन गोइंग, आई वॉज सपोज टू गो एंड आई वॉज एबल टू गो। तो हमें इन टेंसेस के ऊपर जानकारी लेनी है एंड वी हैव टू प्रैक्टिस टेंसेस अ लॉट। ये था हमारा पास्ट टेंस के ऊपर जो हमारा एक फॉर्मेट जो बनाया, हमको फॉलो क्या क्या टेंसेस करना है ताकि हमारे टेंसेस बहुत पावरफुल हो जाए और हम हर रोज लोगों के सामने बैठ के कॉन्वर्सेशंस कर पाए। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में। दोस्तों, फ्रेंड्स, सिमिलर फॉर्मूला है। एक हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो आप, मेन वर्ब देख रहे हो आप, हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा। यहाँ पे जहाँ पे पास्ट टेंस में वॉज वर्ब था, यहाँ प्रेजेंट टेंस में आएगा एम, इज, आर। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर पे था, आई वॉज। मैं घर पे हूँ, आई
am, बाकी उसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, फिर उसका डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। सिमिलर टाइप के दोस्तों, इट्स वेरी 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 सिमिलर। आपको सिर्फ टेंसेस को प्रैक्टिस करते रहना है। इसके जो मेन वर्ब्स है वो भी काफी सिमिलर है। जहां पे पास्ट टेंस में हमने दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल किया था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, साथ में एस, ई एस और आई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूं, आई गो होम। रविंद्र घर जाता है, रविंद्र गोज होम। ये ई एस का फंडा क्या है, मैं आपको अपने डिटेल में टेंसेस के बारे में समझाऊंगा जब मैं टेंसेस के वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। वैसे ही मैं घर जा चुका हूं, आई हैव गॉन होम। आई, वी, दे, यू के साथ हैव, ही, शी, इट नेम के साथ हैज, ये फॉर्मूला है। वैसे मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। नेगेटिव, आई एम गोइंग होम। सबके पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। एक पॉजिटिव जवाब रहेगा, नेगेटिव जवाब रहेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे हम करेंगे हैव बीन, हैज बीन। मैं यहां पे 5 साल से काम कर रहा हूं। आपको सुनने में लगेगा कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, लेकिन क्योंकि वहां पे 5 साल लग गया, इसीलिए आई हैव बीन ना कि आई एम। ये मैं आपको आगे और बताऊंगा, आपको डिटेल्स इसके मिलते रहेंगे। वैसे करेंगे हैव टू, हैज टू। कोई क्रिया आपको करना पड़ता है। मुझे हर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock एवरी डे। कोई कंपल्शन, वहां पे यूज करते हैं हैव टू, हैज टू। जैसे मैंने कहा, हैव के साथ आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट और हैज के साथ ही, शी, इट और नेम। हमारे पास सब्जेक्ट्स आई, ही, शी, इट, नेम, वी, दे, यू, इन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, वहां पे आता है सपोज टू। जैसे हमारे पास्ट में था, वॉज सपोज टू गो होम, आई एम सपोज टू गो। मैं जाने वाला हूं, वहां पे जाने वाला था। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एबल टू। कोई क्रिया आप कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर सुबह 5 बजे उठ पाता हूं। आई एम एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। यहां पे कोई क्रिया आप जो कर पाते हो, वहां पे कर पाए। दोस्तों सब सिमिलर है, आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस और थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में, जहां पे फिर से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और एक तरफ मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर में? विल के साथ लगाना है बी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज शाम को घर पे होऊंगा। आई विल बी एट होम इन द इवनिंग। पास्ट में वॉज, आई, ही, शी, इट और नेम के साथ, वी, दे, यू के साथ वर्ड। आगे सब आपको समझाऊंगा दोस्तों, आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको ढेर सारा इंग्लिश का विज्ञान मिलता रहेगा। वैसे हम करेंगे विल बी का नेगेटिव, आई वोंट बी, आई विल नॉट बी। वैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, इनडायरेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव। यहां पे आते इस तरफ मेन वर्ब। मेन वर्ब में आएगा आपने कौन सा क्रिया किया, पास्ट, करते हो, प्रेजेंट, करोगे, फ्यूचर। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। पहला फॉर्मूला है आई विल गो होम, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनेगा आई वोंट या तो आई विल नॉट गो होम। सवाल बनेगा विल आई गो होम, नेगेटिव बनेगा वोंट आई गो होम। इनडायरेक्ट बनेगा व्हाई विल आई गो होम और नेगेटिव बनेगा व्हाई वोंट आई गो होम। इसके मैं आपको एक स्पेसिफिक चार्ट्स बना के दूंगा, काफी आपको वहां पे मदद मिलेगी टेंसेस के बारे में ज्यादा जानने की, और ताकि आप जब बाहर इंग्लिश बोलो यू आर एबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, विल बी प्लस आईएनजी, कर रहा हूंगा, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल। आई विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, ऐसा कोई क्रिया जो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे डॉक्टर के यहां पे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू विजिट द डॉक्टर टुमारो। वैसे नेगेटिव आई वोंट और सवाल जवाब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एबल टू, अनेबल टू। यहां पे आप कोई क्रिया कर पाएंगे या कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे। मैं कल सुबह नहीं उठ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू वेक अप टुमारो इन द मॉर्निंग। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। सो कुल मिला के हमारे टेंसेस के अंदर आते हैं 6 सेंटेंस। बोलिए मेरे पीछे पीछे। पॉजिटिव, जोर से, यस। नेगेटिव, डायरेक्ट के पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट, और इनडायरेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तक के लिए इतना ही। मैं आने वाले वीडियोस में आपको सारे टेंसेस के डिटेल में जानकारी दूंगा। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल दबाइए, कमेंट मारिए। आई विल बी बैक सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो ऑन टेंसेस। मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर
and always be happy. इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल माय इंग्लिश लर्नर्स. सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है. आई एम कृषाणु, एन इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर. And today in this video I would be sharing you how can you develop your verbal communication skills. आप कैसे इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल को डेवलप कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. You have to follow techniques that will help you to develop the verbal communication skills and you would be able to speak more confidently. Number one is tense. Friends, tense is an exchange of information by questioning and answering in day-to-day life. हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो सवाल जवाब करते हैं, we use tenses in that. We have the past tense, present tense, future tense. In my upcoming videos, मैं टेंसेस के ऊपर सारे वीडियोस अपलोड करूंगा जो आप देख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को अच्छा कर सकते हो. नेक्स्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी, which means that it is a method of requesting, advising, taking permission, suggesting someone. परमिशन मांगना, एडवाइस देना, सुझाव लेना, सुझाव देना, हम मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं. You must have heard of should, could, would, may, might. ये सब मॉडल ऑक्सिलरी है and I would be soon uploading videos on it. इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हाउ कैन यू डेवलप योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको किन किन टेक्निक्स को फॉलो करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए. आगे बढ़ते हैं. तीसरा, फोकस ऑन फ्रेमिंग द सेंटेंस. मैंने देखा है जो इंग्लिश लर्नर है, दे आर फोकसिंग ऑन अ सिंगल वर्ड और इससे आपकी इंग्लिश कभी भी पावरफुल नहीं हो सकती है. You have to completely focus on the one single sentence. मिसाल के तौर पे I would like to play with you. अब यहाँ पे मैंने देखा है जो इंग्लिश लर्नर्स है वो पूछते हैं वुड का मतलब क्या है. आपको वुड के मतलब को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पूरे सेंटेंस को पढ़ना है. आई वुड लाइक टू प्ले विथ यू मतलब मैं तुम्हारे साथ खेलना पसंद करूंगा. ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. आई वुड लाइक टू सिंग विथ यू, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू, आई वुड लाइक टू वॉक विथ यू. ऐसा आपको सेंटेंसेस पे ध्यान देना अगर आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड इफ यू रियली वांट टू डेवलप योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्विकली. आगे बढ़ते हैं. चौथा है वोकैबुलरीज, शब्दों का भंडार, स्टॉक ऑफ वर्ड्स. I have seen that most of the English speakers they are using average language. उनके पास words के भंडार नहीं है. In my video I would be uploading advanced vocabularies that will give more quality to your sentence formation. आपके sentence formation सुनने में काफी अच्छे लगेंगे. Last but not the least, the fifth one, idioms and phrases, मुहावरे और कहावतें. आपने हिंदी में सुना होगा, but I would be training you idioms and phrases in English. मिसाल के तौर पे अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, वहां मैंने यूज किया था बर्ड्स आई व्यू का मतलब बहुत क्लैरिटी, मेकिंग वेव्स मतलब बहुत शोर मचाना. ऐसे ही बहुत सारे idioms and phrases I would be uploading on my video so that your language becomes more powerful and you go through the ceiling while speaking the English language. I will soon upload my next video. जो हमने सीखा आज वो सीखा how can we develop our verbal communication, tenses, model auxiliary, focus and frame full sentences, vocabularies, idioms and phrases. I will soon come back. तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, फॉर मोर नोटिफिकेशन कमेंट डालिए. मैं बहुत जल्दी लौटूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड ऑलवेज बी. इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स. सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है. आई एम कृषाणु, एन इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर. In this video, I would be sharing you the first tense of past. जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब्स होते हैं. यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं आज हम वो सीखेंगे. सो वी हैव द हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. This is my team, everyone, and they would be supporting me to perform the tenses better. चलिए, the formula is subject, come on. Subject plus Helping verb plus object. We have positive sentence, We have positive sentence. negative sentence, Negative sentence. direct questions, Direct questions. indirect questions. Indirect questions. With subjects, With subject. I, he, she, it, name, I, he, she, it, name. we use We use the helping verb was, the helping verb was positive helping verb. positive helping verb. Negative helping verb Negative helping verb wasn't. wasn't. With we, they, you, With we, they, you, we use positive verb we use
positive word. and negative weren't Negative weren't. plus the object. plus the object. Direct questions Direct questions. always answered Always answer. in yes or no. In yes or no. Indirect questions Indirect questions. always answered Always answer. in detail or brief or a sentence, In detail or brief Or a sentence. and always starts with Always starts with WH questions. WH questions. Friends, you must have heard about WH questions जहाँ पे where, why, when, which, how many ऐसे यूज करते हैं और जवाब हमको सेंटेंस में बोलना पड़ता है. आप आई होप आपको समझ में आ रहा है. वी हैव द पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. विद दीज सब्जेक्ट्स वी यूज दिस एंड विद दीज सब्जेक्ट्स वी यूज दिस एंड देन वी हैव द डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड द इनडायरेक्ट क्वेश्चन. सो वी मूव ऑन विद द फर्स्ट एग्जांपल. मैं घर पे था. मैं घर पे था. The, come on. I was at home. Negative. I wasn't at home. Question. Was I at home? Negative. Wasn't I at home? Indirect. Why was I at home? Why wasn't I at home? ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस बने. वी मेड द नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देन वी मेड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. व्यूअर्स, फ्रेंड्स, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगता है वो हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट क्वेश्चन में पहले आ जाता है. एंड रेस्ट अगेन वी हैव द एग्जांपल्स. राइट, ही वाज इन द क्लास, he wasn't in the class, was he in the class, wasn't he in the class, why was he in the class, and why wasn't he in the class. You have to practice this as much as possible ताकि आपके हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस अच्छे से बने और आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी आसानी हो. As I keep on telling you and also my viewers that tenses is a way of exchanging information by questioning and answering. हम सवाल जवाब करके information exchange करते हैं and that is useful in our day-to-day conversation. I hope you like the tenses, the way of the method of explaining it to you. अगर कोई भी आपको सवाल है यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट. अभी तक के लिए इतना ही. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट डालिए, बेल बटन दबाइए. आई विल बी बैक सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड बी हैप्पी. इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स. सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है. आई एम कृषाणु, एन इंग्लिश प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर. एंड इन दिस वीडियो आई वुड बी शेयरिंग विद द टेंस ऑफ सिंपल पास्ट विथ मेन वर्ब. मैंने अपने पीछे के वीडियो में आपको पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का एक टेंस सिखाया था वॉज वर लगा के. अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिंपल पास्ट मेन वर्ब के साथ. एज यू नो इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब हमारा हो चुका पीछे के वीडियो में. राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन वर्ब जहाँ पे हम वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे. और कौन सा वाला? सेकेंड फॉर्म. So here is my team who will help me out in performing this tense. So friends, today we are going to do simple past and the formula is subject Subject plus main verb second form plus main verb second form plus object. plus object. We have We have positive sentence, Positive sentence. negative sentence, Negative sentence. direct question Direct questions. and indirect questions. And indirect questions. Direct questions Direct questions are always answered are always answered in yes or no. in yes or no. हाँ या ना में जवाब देते हैं. Indirect questions Indirect questions are always answered are always answered in detail, brief or sentence in detail, brief or sentence. and always starts Will always start with WH question. with WH question. हम WH question से indirect questions को शुरू करते हैं. Now with the positive sentence we have subject, We have subject, main verb second form verb second form, and object. and object. In negative sentence In negative sentence, we use we we use use did not did not or didn't. or did. हम didn't यूज करेंगे. टीम व्यूअर्स वी विल यूज didn't. इट साउंड्स रियली गुड एंड शॉर्ट एंड क्रिस्पी. तो
डिडंट के साथ हम लगाएंगे पहला फॉर्म। क्या लगाएंगे? पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म नहीं लगाएंगे, पहला फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव में पहला फॉर्म लगेगा, क्वेश्चंस में पहला फॉर्म लगेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा दूसरा फॉर्म लगेगा। ये आपको याद रखना है, समझना नहीं है, याद रखो इसको आप कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाना है, नेगेटिव में आपको पहला फॉर्म लगाना है, डिड नॉट या डिडंट लगा के, फिर सवाल में भी हम पहला फॉर्म लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दैट इज मैं घर गया। सो वी विल डू इट। मैं घर गया मतलब कम ऑन, आई went home. नेगेटिव। I did go home. आप इस डिडंट का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, दिस वुड बी लिटिल क्रिस्पी एंड शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्या मैं घर गया? Did I go home? हमेशा पहला फॉर्म। फ्रेंड्स, द फर्स्ट फॉर्म विद नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन अगेन फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव, Did I go home? इनडायरेक्ट, why did I go home? नेगेटिव। Why did I go home? मैं घर गया, मैं घर नहीं गया। क्या मैं घर गया? क्या मैं घर नहीं गया? मैं घर क्यों गया? और मैं घर क्यों नहीं गया? 6 सेंटेंसेस है, पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्ट के 2 क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चंस। वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, ही प्लेड चेस, ही डिडंट प्ले चेस। डिड ही प्ले चेस? डिडंट ही प्ले चेस? Why did he play chess and why didn't he play chess? You have to practice a lot. आपको टेंस को बोल के प्रैक्टिस करना है, लिखना है, याद करना है और प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। So friends, this is video on simple past with main verb। और यहाँ पे आप देखेंगे कैसे मैंने चार्ट को बनाया, जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है। अभी तक के लिए इतना ही। आई विल बी सून बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल दबाइए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, कमेंट डालिए। आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट टेंस, दैट इज परफेक्ट पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को लेके मैं मौजूद होऊंगा। अब तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी। इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स। सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कृषाणु, एन इंग्लिश प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। Today I am going to share you the next tense and that is perfect past tense with main verb, जो क्रिया आप कर चुके थे। जब हमने पीछे किया था वो था जो क्रिया आपने किया था, ये हमारा कर चुके थे। And we have here again the entire chart. I have my team along with me and we are going to start the tense practice. So we are doing the perfect past tense. The formula is, come on, subject plus had प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो क्रिया आप कर चुके थे, मैं घर पहुंच चुका था, मैं उसको बोल चुका था, बोलते हो ना ऐसे, दैट इज द इन इंग्लिश दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इन दिस वी हैव, कम ऑन, पॉजिटिव सेंटेंस, Positive sentence. नेगेटिव सेंटेंस, Negative sentence. डायरेक्ट क्वेश्चंस Direct question. एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। And indirect question. डायरेक्ट क्वेश्चंस Direct question are always are always answered answered in yes or no, yes or no. हमेशा हाँ या ना में। एंड indirect questions And indirect question are always answered are always answered in detail, in detail, brief brief, or in a sentence, or in a sentence. and always starts with And always starts with WH questions। WH question. WH से ये सवाल शुरू होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जा चुका था, वी हैव, कम ऑन, I had gone home. नेगेटिव I hadn't gone home. क्वेश्चन, Had I gone home? नेगेटिव Hadn't I gone home? इनडायरेक्ट Why had I gone home?
Come on, energy. Why hadn't I gone home? This is the example, one example I'm sharing with you. You have to practice it as much as possible. ये क्रिया है जो आप कर चुके थे, past tense में कहा जाता है perfect past. Next example could be she had played chess. She hadn't played chess. Had she played chess? Hadn't she played chess? Why had she played chess? And why hadn't she played chess? मैं यहाँ पे बार बार why का इस्तेमाल कर रहा हूँ. आप प्रैक्टिस में वहाँ पे where लगा सकते हो, who लगा सकते हो, when लगा सकते हो, what time लगा सकते हो. आपको सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम करना है. So this is the chart of perfect past. Subject plus had plus main verb third form plus object. अभी के लिए इतना ही. Friends, I will be soon back with my next video. That would be on continuous past tense. जो क्रिया आप कर रहे थे. अभी तक के लिए इतना ही. I would be soon back. तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए for further notification. कमेंट डालिए और मैं बहुत जल्द लौटूंगा नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिए. इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स. सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है. I am Krishanu, an English professional, communication and personality development trainer. Friends, today we are going to learn about a new tense, and that is continuous past tense. I have my team along with me to support me. And continuous past tense का मतलब है जो क्रिया आप कर रहे थे, जो क्रिया आप कर रहे थे पास्ट में हो रहा था. The formula is subject plus helping verb plus main verb first form plus ing plus object. We have positive sentence, negative sentence, direct question and indirect questions. Direct questions are always answered in yes or no, and indirect questions are answered in detail, brief, or a sentence. So we start up with the tense. Friends, जैसे कि आप देख रहे हो, all the tenses are of similar form, similar fashion. सबका एक ही चार्ट बन रहा है. हमने शुरू किया था हेल्पिंग वर्ब से. हम कर चुके हैं सिंपल पास्ट में मेन वर्ब का सब्जेक्ट और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म लगा के. देन वी हैव फिनिश्ड परफेक्ट पास्ट. और आज का जो हमारा विषय है वो है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, वेयर वी आर लर्निंग द पॉजिटिव, नेगेटिव, द क्वेश्चन पार्ट. फर्स्ट एग्जांपल, मैं घर जा रहा था. कम ऑन. आई गोइंग होम. Negative. I wasn't going home. Direct question. Was I going home? Negative. Wasn't I going home? Indirect. Why was I going home? Negative. Why wasn't I going home? ये हमारे 6 सेंटेंस बने जहाँ पे मैं घर जा रहा था, मैं घर नहीं जा रहा था, क्या मैं घर जा रहा था, क्या मैं घर नहीं जा रहा था, मैं घर क्यों जा रहा था और मैं घर क्यों नहीं जा रहा था. मैंने आपको वाई से सिखाया. एट होम फ्रेंड्स यू कैन प्रैक्टिस विथ वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हेन. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस बोलने की करनी है. मिसाल के तौर पे नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉज प्लेइंग चेस. ही वॉजंट प्लेइंग चेस. वॉज ही प्लेइंग चेस. वॉजंट ही प्लेइंग चेस. व्हाई वॉज ही प्लेइंग चेस एंड व्हाई वॉजंट ही प्लेइंग चेस. आप एक एग्जाम्पल वर्ड से करते हैं. हमने पीछे वर्ड से एग्जाम्पल नहीं किया था, हम वर्ड से एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे. चलिए दोस्तों, वी वर कैचिंग ट्रेन. नेगेटिव. वी वरंट कैचिंग ट्रेन. क्वेश्चन, वर वी कैचिंग ट्रेन. नेगेटिव. वरंट वी कैचिंग ट्रेन. क्वेश्चन, व्हाई वर वी कैचिंग ट्रेन. व्हाई वरंट वी कैचिंग ट्रेन. इसे वर्ब बोलते हैं और इसे वरंट बोलते हैं. ये हमारा एक और टेंस यहाँ पे समाप्त होता है. कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, जो क्रिया आप कर रहे थे, इसका हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है.
अभी तक के लिए इतना ही। आई विल बी सून बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। कमेंट डालना मत भूलना, कमेंट डालते रहिए, मैं आपके हर सवालों के जवाब देता रहूंगा। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अनदर टेंस। तब तक अपना आप ख्याल रखिए, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी। इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल माय इंग्लिश लर्नर्स। सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कृषाणु, एन इंग्लिश प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर. And today in this video, I would be sharing you how to develop your small talks. छोटी बातें, regular talks जो आप हर रोज करते हो, all the time in the office, maybe in a discussion, maybe in the shopping mall, maybe in the restaurant, or maybe in the hotel somewhere. जहाँ पे भी आप small talk करते हो, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है. So I have divided the small talk into 3 parameters. Number 1 is a general talk or general question. Number 2, shopping and social questions. शॉपिंग में क्या सवाल आपको पूछे जा सकते हैं और सोसाइटी में किस सवालों के आपको जवाब देने हैं, रेगुलर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंड यू हैव टू नो दिस. एंड द थर्ड वन इज द रेस्टोरेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको क्या सवाल पूछना है, क्या जवाब देना है. आई वुड बी ट्रेनिंग यू हाउ टू डेवलप योर स्मॉल टॉक इन दिस वीडियो. आगे बढ़ते हैं. जो पहला है दैट इज जर्नल क्वेश्चंस. इसमें क्या क्या आपको पूछ सकते हैं. नंबर 1, यू हैव टू ऑलवेज कीप योर इंट्रोडक्शन रेडी. इंट्रोडक्शन आपका रेडी होना चाहिए, जैसे माई नेम इज एंड कहाँ पे आप रहते हो, क्या आप करते हो और आपके हॉबीज या आपके स्ट्रेंथ क्या है. You can go back to my previous video where I have uploaded my video on how can you work on your self introduction. आगे बढ़ते हैं. आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, What do you do? आप करते क्या हो. That means they want to know your profession or job. आप जवाब दे सकते हो, I am a student or I work in a bank. I am unemployed at the moment. I run my own business. I am retired now and I used to work as an engineer or a doctor previously. ऐसा आपको जवाब देना है. आपको जब पूछेंगे What do you do? अगला सवाल जो पूछा जा सकता है वो है Are you married? हमने देखा है कि हमेशा हम जवाब एक वर्ड में या सिंगल वर्ड में देते हैं. फ्रेंड्स, दिस विल नॉट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपको जवाब देना है तो आपको कंप्लीट सेंटेंस में देना है. आर यू मैरिड? यस, आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years नाउ. या आप बोल सकते हो आई एम एंगेज्ड गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. या आप बोल सकते हो नो, आई एम सिंगल. ऐसा कुछ सेंटेंस में जवाब देना है. मैंने देखा है कि जितने इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो एक वर्ड में जवाब देते हैं. दिस विल नॉट हेल्प यू टू डेवलप योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. फ्रेंड्स, यू हैव टू टॉक इन कंप्लीट सेंटेंस. मैं बहुत जल्दी अपना एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जहाँ पे आपको कैसे कंप्लीट फ्रेज और कंप्लीट सेंटेंस में बात करना है, आपको उसका वहाँ पे विज्ञान मिलेगा. लेट्स मूव ऑन. आपको सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आप खाली वक्त में क्या करते हो? आप बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, मेरे पास खाली वक्त है नहीं. या आप बोल सकते हो आई नॉर्मली हैंग अराउंड विथ माई फ्रेंड्स. या आप बोल सकते हो आई रीड अ लॉट. या आप बोल सकते हो दैट आई स्पेंड टाइम डेवलपिंग माई पर्सनैलिटी एंड डेवलपिंग माई कम्युनिकेशन. एक बहुत ही आम सा सवाल जो आपको पूछते हैं उसमें भी आप एक वर्ड में ही आंसर देते हो. व्हाट इज द टाइम? आप बोल देते हो 6 o'clock. आपको कंप्लीट सेंटेंस में बोलना है इट इज 6 o'clock और इट इज 4:30 विच मीन्स 4:30. अगर आपको नहीं पता तो आप बोल सकते हो लेट मी चेक. अगर आपको बताना ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है तो आप बोलोगे सॉरी आई डोंट नो. आपको ऐसे कंप्लीट सेंटेंस में जवाब देना है दोस्तों. अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है शॉपिंग एंड सोशल क्वेश्चंस. आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो क्या सवाल आपको पूछे जा सकते हैं और आपको उन सवालों के कैसे पूरे जवाब देने हैं मैं आपको इसमें बताऊंगा. शॉपिंग एंड सोशल क्वेश्चन हो सकता है कि कैन आई हेल्प यू? डू यू नीड एनी हेल्प? आप बोल सकते हो अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप बोल सकते हो नो आई डोंट नीड इट, थैंक्स. या आप बोल सकते हो वेयर इज द शर्ट काउंटर. या आप पूछ सकते हो वेयर इज द ट्राई ऑन रूम. ट्राई ऑन रूम का मतलब है जहां पे आप कपड़े चेक करते हो, उसके साइज चेक करते हो, दैट्स कॉल्ड ट्राई ऑन रूम.
या आपको सोशली में पूछे जा सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग का मतलब है हाउ इज योर लाइफ मूविंग, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। तो आप बोल सकते हो इट इज ग्रेट, आप बोलते हो ओके, फाइन, गुड, बैड। आपको हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में जवाब देना है और कंप्लीट सेंटेंस में जवाब देना है। इट इज गुड, इट इज नॉट बैड। नॉर्मली पीपल आस्क दिस क्वेश्चंस, दे एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही रेगुलर सा सवाल जो आपको पूछा जा सकता है वो है हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैंने देखा है कि जवाब हमेशा एक वर्ड में देते हो, गुड, नाइस, फाइन। नो, आपको पूरे सेंटेंस में जवाब देना है। आई एम फीलिंग ग्रेट, इट्स अ नाइस, आई एम ऑल राइट, थिंग्स आर मूविंग ऑन, गुड। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो काफी बार आपको पूछा जा सकता है, दैट इज हाउ वॉज योर डे। गुड, बैड, नॉट गुड, नॉट बैड, कंप्लीट सेंटेंस। इट वॉज रियली गुड और इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव। ओह, आई वॉज सुपर बिजी, आप बहुत बिजी थे। आपको जो भी आंसर देना है, जो भी रिप्लाई देना है, वो पूरे सेंटेंस में होगा। अब मान के चलिए आप एक फिल्म देखने जाते हो अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ। फिल्म हो जाने के बाद हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं, डिड यू लाइक द फिल्म, क्या आपको फिल्म पसंद आई। यस, आपको जवाब देना यस इट वॉज फैंटास्टिक। और आपको अच्छी लगी तो, और आपको बुरी लगी, इट वॉज रियली वेरी टेरिबल, इट वॉजंट गुड, इट वॉजंट बैड। या आपको बहुत अच्छी लगी तो आप बोल सकते हो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर वॉच्ड। आपको ऐसे जवाब देना है। अब मान के चलिए आप पार्टी में गए और पार्टी हुई और पार्टी में आपको पूछा कि हाउ वॉज द पार्टी, तो आप बोल सकते हो वाह, इट वॉज अ गुड टाइम। अगर पार्टी अच्छी थी, अगर ठीक ठाक थी, इट वॉज नाइस। और कोई वहां पे लोग ही मौजूद नहीं थे, आप बोल सकते हो देयर वॉज हार्डली एनीबडी इन द पार्टी। और आपको पार्टी बोरिंग लगी तो बोल सकते हो इट वॉज अ बोरिंग पार्टी। ऐसा आपको पूरे सेंटेंस में जवाब देना है और ना कि आपको एक शब्द में जवाब देना है। एक शब्द में जवाब देने से आपकी इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं हो सकती है। आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है पूरे सेंटेंस में जवाब देने से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको पूछा जा सकता है व्हाट्स द मैटर, बात क्या है। आप बोल सकते हो आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव लिटिल कोल्ड, कफ, इट वॉज अ रफ डे, काफी चैलेंजिंग दिन था। और आपको जवाब देना ही नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट क्वेश्चंस। हम आमतौर पे रेस्टोरेंट में जाते हैं संडेज को फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ एक अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन वहाँ पे सेंटेंस ना बनने की वजह से, इंग्लिश में बात ना करने की वजह से आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन आस्किंग क्वेश्चन। जो एक पहला सवाल आपको पूछा जा सकता है रेस्टोरेंट में, वो पूछा जा सकता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। आपको जवाब देना है वी आर 3 of us, we are 2 of us, we are 4 of us, we are 5 of us। आपको इसको याद करना है दोस्तों। अगला सवाल जो आपको पूछा जा सकता है what would you like to drink। आपको जवाब देना है, अगर आपको प्यास लगा है तो पूछना है just a glass of water या something that is soothing and blooming। उसके बाद जो आपको सवाल पूछा जा सकता है वो है What do you want to order? आप वहां पे बोल सकते हो I want to order और नाम by नाम, name by name। For example, I want to order a dal, maybe some vegetable or maybe anything that you wish to have। और आखिरी में आप पूछा जा सकता है Can I get you anything else? क्या मैं आपके लिए और कुछ ला सकता हूँ। और आपने अपना खाना खत्म कर लिया है तो आप बोल सकते हो नो थैंक्स, वी आर डन, मतलब हो चुका है, आई एम वेरी हैप्पी, वी आर कंटेंट। या आपको कुछ अगर डेजर्ट्स चाहिए तो यू कैन टेल कैन यू प्लीज गेट मी सम डेजर्ट्स। ये था 3 टेक्निक स्मॉल टॉक को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले है हमारा जर्नल क्वेश्चंस, फिर जो शॉपिंग मॉल्स में या जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो,
और सोसाइटी में, समाज में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और तीसरा है रेस्टोरेंट क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग स्मॉल टॉक, क्योंकि आगे आपको इसका बहुत काम में आएगा। इट्स अ रेगुलर टॉक एंड आई विल गेट बैक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए फॉर मोर नोटिफिकेशन। कमेंट डालना मत भूलिएगा। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज बी सुपर हैप्पी। विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कृषाणु, एन इंग्लिश प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द स्मॉल टॉक जो हमने पीछे के वीडियो में किया था। मैंने आपको बताया था टुडे इट वुड बी अ वीडियो ऑन द प्रैक्टिकल सेशन कि स्मॉल टॉक किया कैसे जाता है। आई वुड बी शोइंग यू इन दिस वीडियो। मैंने आपको पीछे बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्मॉल टॉक्स दैट कैन हैपन। एक है जर्नल क्वेश्चन, जर्नल टॉक। दूसरा शॉपिंग मॉल में हो सकता है, या इट कैन बी अ सोशल क्वेश्चन जो आपके सोसाइटी में पूछा जा सकता है। एंड देन इट इज अ रेस्टोरेंट क्वेश्चन। So I have my 2 participants who would be coming and performing it in front of you. Please come. So we are going to start, viewers, with the journal questions like what do you do, where do you live, and all those questions. Can we start? Yes. What's your name? Good name. My name is Asmita. Where do you work? I am a student. Are you married? No, I am single. Are you fond of reading? Yeah, sometimes. What type of books do you read? Fiction or romantic? I read fiction books. And how do you commute to your office? I daily travel by train. जैसे कि आपने देखा इन जनरल क्वेश्चंस कैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जवाब दिया। स्मॉल टॉक से रेगुलर टॉक से आपको प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं। शॉपिंग में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? What kind of questions can be asked in a shopping mall? We will hear it from them. She is the seller and she is the buyer. Can we start? How can I help you, ma'am? Yeah. Can you tell me as to where is the trial room? I would like to try this room. Yeah, that is that way. Okay. And do you take credit cards or cash or both? Yeah, we take both the credit and the debit cards. Okay. And do you have tops in cotton or synthetic? Yeah, we have both the cotton and synthetic. You can go that way. थैंक यू सो मच। ये था हमारा शॉपिंग मॉल में क्वेश्चन। अभी आते हैं सोसाइटी से क्या क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे आपका दिन कैसा था, पार्टी कैसी थी, फिल्म कैसी थी। ये सवाल पूछते हैं हमारे सोसाइटी में। वी विल हियर इट फ्रॉम देम। कैन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सोशल क्वेश्चंस? What do you do? I spend my day, half a day working in the office and half a day in the house. How was your day? My day was great. How was the party? The party was exorbitant. What do you do in the free time? In the free time, nothing is fixed. I spend my time with friends, with family, and with grandchildren. थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है जो है रेस्टोरेंट क्वेश्चन। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या सवाल आपको पूछे जा सकते हैं? मिसाल के तौर में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? आप बोलोगे देयर आर 3 मेंबर्स। व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर? आप क्या ऑर्डर करना पसंद करोगे? वी विल डू इट एंड दे विल डू इट फॉर मी। कैन यू जस्ट स्टार्ट? You can just be a person from the hospitality and you are the customer. Can you just give us the service? How many members are there with you, ma'am? We are 10 of us. What do you like to drink? I mean, can you serve something hot, something nice and soup? What do you like to order? I would like to order soup first. And then you can order for starters. थैंक यू सो मच। ये कुछ सवाल थे जो रेस्टोरेंट में पूछे जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच माय टीम। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। Yeah, so guys and friends, we have seen that how to do small talks, and I have uploaded videos where I have explained you the kind of small talks that you need to do, and in this video I have shown you a practical method of how to do a small talk. और आपके स्मॉल टॉक अच्छे हैं, सो डे टू डे लाइफ में आप अच्छे से बात कर पाएंगे। यू वुड बी एबल टू टॉक टू पीपल। अभी तक के लिए इतना ही। आई गेट बैक टू यू विथ माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। कमेंट डालना मत भूलिए। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी। इंग्लिश विज्ञान वेलकम्स ऑल द इंग्लिश लर्नर्स। सभी इंग्लिश लर्नर्स का इंग्लिश विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कृषाणु, एन इंग्लिश प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर. And today we are going to learn the next tense, and that is perfect past continuous tense with the time phrase.
हमने जो पीछे जो वीडियो किया था दैट वाज कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, जहां पे हम कोई क्रिया कर रहे थे। इसमें हम परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेंड्स हम कोई क्रिया कुछ समय से कर रहे थे, एक ड्यूरेशन रहेगा सिंस 2 days जैसा, 2 hours, सिंस 1 hour, इसको हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। आई हैव माय टीम हियर एंड दे विल सपोर्ट मी टू डू दिस टेंस टू माय व्यूअर्स। सो हैड बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो क्रिया आप कर रहे थे प्लस टाइम। सो वी हैव द फॉर्मूला, कम ऑन गाइस, subject plus had been plus main verb first form plus ing plus object. This is the formula, subject plus had been plus main verb first form plus ing plus the object and plus the time, जिस समय के लिए आपने वो क्रिया आप कर रहे थे। So here we have, come on, the positive sentence, Positive sentence. negative sentence, Negative sentence. direct questions, Direct question. indirect questions. Direct question. Direct questions Direct question. are always answered Always answer. in yes or no, Yes or no. and indirect questions Indirect question. are always answered Always answer. in detailed sentence or brief. Detailed sentence or brief. For example, For example, मैं 2 दिन से दो दिन से सफर कर रहा था। सफर कर रहा था। Come on. I had been traveling since 2 days. Negative. I hadn't been traveling since 2 days. Now friends, in the direct question जो हमारा had been है, had आगे आ जाएगा और been क्वेश्चन में आ जाएगा, जो लिखा है नीचे मैंने क्वेश्चन। Can we start? Come on. Had I been traveling since 2 days? Hadn't I been traveling since 2 days? Why had I been traveling since 2 days? Why hadn't I been traveling since 2 days? इसका मतलब है मैं 2 दिनों से सफर कर रहा था। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, जहां पे हम कंटिन्यूअस ही करते हैं लेकिन वहां पे एक टाइम फ्रेज, एक समय जुड़ जाता है, एंड दैट मेक्स इट a continuous perfect past tense. You have to practice a lot. For example, we had been playing from 2 hours. We hadn't been playing from 2 hours. Had we been playing for 2 hours? Hadn't we been playing for 2 hours? Why had we been playing for 2 hours? And why hadn't we been playing for 2 hours? आपको इसको लगातार प्रैक्टिस करना है। एंड फ्रेंड्स, यू हैव टू प्रैक्टिस द टेंस। आपको टेंस को याद करना है और ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है जैसे आप यहाँ पे आप हमारे वीडियो में देख रहे हो, कैसे हमको इसको प्रैक्टिस करना है। अभी तक के लिए इतना ही। आई गेट बैक टू विद माय नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टेंस। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए फर्दर नोटिफिकेशन, और आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, मैं फिर लौटूंगा। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।